are going to start with chapter number 4, our nervous system. The sense organs are windows in the world. We learn about our surroundings through them, but the sense organ cannot recognize anything on their own. They are like receiving centers. They are like receiving center. They just receive the sensation and pass it to our nervous system. ये क्या है, एक तरीके के हमारे ये करते हैं, हमारे जो खाली सेंसेशन है उनको रिसीव करता है, किसको पास आउट करता है, हमारे nervous system. It is very important system of the body. Activities like seeing, hearing, tasting, smelling, laughing, crying, reading, writing, walking, climbing, feeling things around us not be possible without nervous system. It coordinates and control our system. ये हमारे सिस्टम को कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं. अगर हमारे सेंस ऑर्गन नहीं होते तो हम जो चीजें अपने आसपास हैं उनको सेंस नहीं करते. नेक्स्ट start with nervous system. This is our nervous system. The entire nervous system is built of neurons, nerve cells and axons. जो हमारा complete nervous system है ये neurons और axons का बना है, मतलब nerve cells का और nerve fiber. The nerve fiber is very long. Bundles of nerve fibers form a nerve. और जिनके bundles होते हैं nerve fiber के क्या form करते हैं? Nerve form. Our nervous system may be divided into 3 parts. और अगर हम बात करें जो हमारा nervous system है ये 3 parts में divided है. Central nervous system, peripheral nervous system और automatic nervous system. अगर हम बात करें central का consist of brain and spinal cord. अगर हम central की बात करें तो उसमें क्या होता है? Spinal cord और brain होती है. Peripheral is made up of nerves arising from brain and spinal cord. इसमें nerves होती है जो कहाँ से arise आती होती है, हमारे spinal cord और brain से. Automatic consists of special group of nerve cell called ganglia. Ganglia क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें क्या होते हैं, आपके नंबर ऑफ नर्व सेल्स क्या होते हैं. It controls involuntary functions of several internal organs. This system is independent of one will. ये क्या होता है? Independent होता है और हमारी will का होता है. Now we will talk about brain. The brain fills up most of the space in the head. An adult brain weighs about 1.3 to 1.4 kg. जो हमारा ब्रेन है उसका वेट कितना होता है? 1.3 to 1.4 kg. The brain is the main control and coordination center of the human body. जो ब्रेन होता है वो क्या होता है? मेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर होता है ह्यूमन बॉडी का. ये जो सारे हमारे एक्शन रिएक्शन होता है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं. क्या करते हैं? जो हमारे एक्शन रिएक्शन होता है उसको कोऑर्डिनेट करते हैं and recognize them and sending messages to the nerves to different parts of the body to respond. The brain helps a person to think, remember, feel and control body. ब्रेन का क्या काम होता है? ये हेल्प करता है पर्सन को सोचने में, थिंक करने में, रिमेंबर करने में, फील करने में और अपनी बॉडी की मूवमेंट करने. नाउ ब्रेन हैज 3 मेन पार्ट, सेरिब्रम, सेरिबेलम और मेडुला और ब्रेन. जो ब्रेन है उसके 3 पार्ट्स हैं. वन बाय वन we will study all the 3 parts. First is cerebrum, is the largest part of our brain. Its surface has deep folds so that it can fit into skull. It is dome-shaped. It controls the memory, learning, thinking, intelligence and sense on. It is present in upper region of brain. जो upper region होता है ब्रेन का ये वहाँ पे होता है, ये हमारी कुछ एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, मेमोरी को, लर्निंग को, थिंकिंग को इसका करता है, कंट्रोल करता है. ठीक है, और ये कैसा होता है? ये डोम शेप का होता है. नेक्स्ट इज सेरिबेलम. ये स्मॉल ब्रेन होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इन द बैक पार्ट ऑफ द ब्रेन अंडर सेरिब्रम. ठीक है, सेरिब्रम के नीचे होता है. इट इज एक्ट शेप. अगर हम बात करें सेरिब्रम जो था वो डोम शेप था और जो सेरिबेलम है वो कैसा है? एक्ट शेप. इट कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स मूवमेंट ऑफ आवर वॉलंटरी मसल्स एंड हेल्प्स टू कीप बैलेंस व्हाइल वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग. और ये हमें बैलेंस रखने में हेल्प करता है व्हाइल वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग. ठीक है. नेक्स्ट इज मेडुला और ब्रेन स्टेम. ये लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन, इट लुक्स लाइक अ स्टेम. ये क्या है? लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन और किसकी तरह लगता है? स्टेम की तरह. इट कनेक्ट्स ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड. ये ब्रेन को किससे कनेक्ट करता है? स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है. ठीक है. इट फंक्शन इज टू कंट्रोल और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज लाइक ब्रीथिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन. ठीक है, इसका क्या काम होता है? सारी जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज होती है जैसे कि ब्रीथिंग हो गया, ब्लिंकिंग ऑफ आईज हो गया, ठीक है, डाइजेशन हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, इनको क्या करती है? कंट्रोल कर. नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड. ये क्या है? स्पाइनल कॉर्ड है. द स्पाइनल कॉर्ड इज अ थिक बंडल ऑफ नर्व दैट एक्सटेंड डाउनवर्ड फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन. ठीक है, बेस ऑफ द ब्रेन से डाउनवर्ड की तरह एक्सटेंड करती है. इट एनक्लोज एंड प्रोटेक्ट द बोन.
ये हमारी बैकबोन को करती है, क्लोज करती है और प्रोटेक्ट करती है। नर्व्स फ्रॉम द हेड रीजन आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द ब्रेन। नर्व्स फ्रॉम ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड इज कनेक्टेड टू द ब्रेन। ठीक है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उससे कनेक्ट है, ब्रेन से कनेक्ट। सो जो मैसेज ट्रैवल टू एंड फ्रॉम बिटवीन द ब्रेन and rest of the body through the spinal. Next, we will talk about nerves. Nerves are the long wire-like structure that carry message between the brain and other parts of the body. ये करता है, मैसेज कैरी करता है किसके बीच में? ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स, सेंसरी नर्व्स, मोटर नर्व और मिक्स। अगर हम बात करें तो आपकी अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स ऑफ नर्व है। एक है सेंसरी, मोटरी और मिक्स। सेंसरी नर्व्स जो होती है वो कैरी करती है मैसेज टू स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन फ्रॉम सेंसर, किधर? स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन। मोटर नर्व भी सेंड सिग्नल्स बैक फ्रॉम द ब्रेन टू मसल्स एंड ग्लैंड्स इन द बॉडी। मसल्स और ग्लैंड्स को भेजती है। ठीक है, दीज सिग्नल्स मेक द मसल मूव एंड द ग्लैंड सीक्रेट टू। ठीक है, मसल्स तो मूव करती है और जो ग्लैंड्स होते हैं वो मूव से सीक्रेट करते हैं। मिक्स्ड नर्व कैरी मैसेज बिटवीन सेंसरी नर्व सेल एंड मोटर नर्व। दे आर प्रेजेंट इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। जो आपके नर्व होती है ये किसमें होती है? आपके, अगर हम बात करें जो मिक्स नर्व होती है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। नाउ रिफ्लेक्स एक्शन, आवर बॉडी हैज सम ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज। फॉर एग्जांपल, इफ वी एक्सीडेंटली टच अ हॉट आयरन, वी विथड्रॉ आवर हैंड इमीडिएटली। दीज एक्शन आर इंस्टेंट एंड मोस्ट रिफ्लेक्स टेक्स प्लेस एंड सेंड टू द स्पाइनल कॉर्ड विदाउट इन्वॉल्विंग द ब्रेन। देखा होगा आप कुछ भी गर्म चीज टच करते हैं, जैसे आप टच करेंगे तो आपका जो हैंड है वो एकदम से वापस चला जाता है। वो किसकी वजह से होता है? कि जो आपका ब्रेन है वो डायरेक्ट सिग्नल भेजता है बिना किसी सेंस ऑर्गन के यूज। ठीक है, दीज रिस्पॉन्सेज आर वेरी फास्ट। सच ऑटोमेटिक एक्शन इन रिस्पॉन्स टू समथिंग आर कॉल्ड रिफ्लेक्स। और जो ये एक्शन होते हैं क्या होता है? आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। दीज एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कॉर्ड। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम बिग डैमेज ऑफ आवर बॉडी। और इनको कौन प्रोटेक्ट करता है? आपके स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और ये हमें बड़े डैमेज से बचाता है। When a thorn pricks our finger, you feel the pain in the skin of finger. The sensory nerve send message to the spinal cord. देखो, आप कांटे के पेड़ पे हाथ लगाते हैं तो आपको पेन होगा। वो पेन आपको क्यों फील हो रहा है? जो आपकी सेंसरी नर्व है वो सेंड कर रही है मैसेज उसको आपके स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ऑर्डर्स द मोटर नर्व एंड मोटर नर्व्स ऑर्डर मसल्स टू विथड्रॉ। दिस स्पाइनल कॉर्ड तो मोटर नर्व्स को बताता है, मोटर नर्व किसको बताते हैं? हमारे हैंड को बताते हैं कि वो आपको हटाना है। Sense organ, the organ which connects us to outside world are known as sense organ. The 5 sense organs are eyes, ear, nose, tongue and skin. और जो हमारा स्किन होता है वो आप सबको ही पता होगा कि लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन होता है। First we will study about eyes. Eyes gives us sense of sight. It is very sensitive organ. It is present in socket in the skull and it is well protected by bones. और ये किससे प्रोटेक्ट होता है? आपकी बोन्स। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स हैं आपके आइज के, आईलिड, इरिस, प्यूपल, रेटिना, कॉर्निया और ऑप्टिक। अगर हम बात करें, ये तो क्या हो गया? आपका लेंस हो गया। ठीक है, ये जो आपका ब्लू कवरिंग है इसे हम क्या कहते हैं? कॉर्निया कहते हैं। दिस इज कॉर्निया। ठीक है, और ये जो होता है ये क्या होता है? इरिस होता है। और ये आपका लेंस हो गया। दिस इज रेटिना एंड दिस इज ऑप्टिक नर्व। ये जो होती है ये आपकी क्या होती है? ऑप्टिक नर्व होती है। वी विल टॉक अबाउट आईलिड्स। Eyes are covered with the flat flap-like eyelids. Eyelids protect the eyes from dust, dirt, and other things, as well as bright light that might damage the eye. जो हमारी eyelids है वो हमारी आइज को प्रोटेक्ट करती है डस्ट से, ठीक है, डर्ट से और कुछ अदर थिंग्स। ठीक है, क्या हो जिससे कि जो हमारी आइज है वो डैमेज ना हो। इट इज द कलर्ड पार्ट प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द आइज प्रेजेंट बिहाइंड द कॉर्नर। ये कॉर्नर के बिहाइंड होता है और ये कैसा होता है? कलर्ड पार्ट होता है। प्यूपिल विच लुक्स लाइक अ ब्लैक स्पॉट, जो आपकी ब्लैक स्पॉट होती है। ठीक है, एक्चुअली एन ओपनिंग इन द इरिस दैट लेट्स लाइट एंटर इनटू अ आई। मसल्स इन द इरिस मेक्स द पिपल बिगर और स्मॉलर टू लेट लाइट डिपेंडिंग अबाउट द ब्राइटनेस ऑफ आउटसाइड। वो छोटा बड़ा होता है वो और किस पे डिपेंड करता है? जो भी ब्राइटनेस आपकी बाहर से आपके आँख को मिल रही है। रेटिना, इनर पार्ट ऑफ आई, इट इज वेरी थिन लेयर ऑफ टिश्यू कॉल्ड रेटिना which captures the light and enters the eye and send to the brain through ऑप्टिक। ये आइज में एंटर करता है और सेंड करता है किसे? टू द ब्रेन, किसके थ्रू? ऑप्टिक नर्व के। कॉर्निया, इट इज अ डॉम शेप्ड एंड ट्रांसपोर्ट
transparent part of the eye which protect front portion of the eye and pupil and iris. The lens is present behind the iris. आपने देखा होगा जो लेंस है वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट है, इरिस के जस्ट पीछे. Optic nerve, it is a nerve that connects the eyes to the brain. This nerve carry image to the brain. इसका क्या काम होता है, ये इमेज कैरी करता है कहाँ, ब्रेन. Now ear helps us to hear the sound and maintain our balance. Ear is divided into 3 parts. अगर हम बात करें ear के भी आपके 3 parts हैं, external ear, middle ear और inner ear. ठीक है. Now it is like a funnel that collects the sound. जो external ear होता है वो एक तरीके का funnel होता है जो sounds को collect करता है. Next is middle ear. After the sound enters in this part, it is made up of 3 small bones called eardrum. The vibration of the sound are transmitted to the eardrum. जो vibration है sound की वो किससे transmit होती है, through the eardrum. Inner this vibration passes into inner ear and here the nerve send the signal to the brain. यहाँ पे क्या होता है, जो nerve है वो signal send करता है किसे, brain. Next is nose. The nose helps us to smell and breathe. The nose has 2 holes. 2 holes होते हैं हमारे nose के, जिसे हम क्या कहते हैं, nose frills कहते हैं. और nose हमें smell करने में help. At the back of the nose, there is a space between called nasal cavity. It is separated from the mouth by a bony structure called palate. ठीक है, एक bony structure से separate हुआ होता है जिसे हम क्या कहते हैं, palate कहते हैं. Next is tongue. It is a sense organ of taste. The structure of the tongue has 2000 to 8000 tiny bumps called taste. ये जो ये होते हैं ना, ये taste bud. ये कितने होते हैं, 2000 से 8000 होते हैं. ठीक है, और हमारी टंग है ये 4 टाइप के टेस्ट को बताती है. That is sweet, sour, salt and mixed. खट्टा, मीठा, नमकीन, इनको बताते. These words are attached to the nerve. The taste messages are sent to the brain through nerves. It also helps us in speaking and eating. और ये इसमें किस में हेल्प करता है, बोलने में और खाने. The smell of the food plays very important role in how it tastes. You must have observed that when you have cold or when your nose is blocked, the food does not taste as good as it normally does. ठीक है, जब आपकी नोज ब्लॉक हो जाती है तो खाना में इतना टेस्टी नहीं लगता जितना हमें पहला लगता है. Skin is the largest sense organ and it covers the whole body. It has millions of tiny nerves ending which can detect many sensations like touch, pain, heat, pressure, pull, cold. हम सबको सेंस करता है. अब कोई भी हम ऐसे करके छूटेगा तो हमें एक पेन फील होता है, सेंसेशन फील होती है. The pores of the surface of the skin allow some body waste to come out as sweat. The palm and the fingertips have more nerve ending so we can feel better with them. तो हमें क्या लगता है, थोड़ा better लगता है. Now care of sense organs. Our sense organs are very important part of our body as they should be treated with their proper. Some of the ways by which we can take care of our sense organ are as follows. यहाँ पे कुछ ways दिए हुए हैं जिससे आप अपने sense organs को क्या कर सकते हैं, उनकी केयर कर सकते हैं. जैसे फर्स्ट है, we should wash our eyes regularly with clean water. We should not read in dim light or very bright light. आपको अपने फेस को क्लीन वाटर से वॉश करना चाहिए और ज़्यादा डिम लाइट में आपको पढ़ना नहीं चाहिए. should not read. You should not read while lying down in bed. बेड पे लेट के भी रीड नहीं करना चाहिए. We should protect our eyes from dust particles. जो भी डस्ट पार्टिकल है उनसे अपनी आइज को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए. We should not allow water to enter our ear. We should keep our nostrils clean. अपनी nostrils को क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए. We should not clean our ears with hairpin or toothpick. We should clean every sense organ properly while taking bath. जब आप बात ले रहे हैं तो आपको प्रॉपरली अपने सारे सेंस ऑर्गन को वॉश करना चाहिए. We should not put finger, pencils और matchstick into the nostrils. इन सब चीज़ों को nostrils में नहीं डालना चाहिए. ठीक है, चैप्टर has been finished. ठीक है, अब हम इसके एक्सरसाइज करेंगे. We will start with the exercise of the chapter. ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है. Now let's start with the exercise. First is tick the appropriate answer in each of the following. First is the largest part of the brain. जो सबसे बड़ा पार्ट होता है ब्रेन का वो क्या होता है आपका, cerebrum. Which of the following structure protects our brain? इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है? That is known as cranium. Which sense organ helps to keep our balance? ठीक है, हमारे बैलेंस बनाने में स्किन हमारी हेल्प करती है. Most reflex actions are controlled by. जो reflex action है उसे हम खुद से कंट्रोल करते हैं by the brain. Ear drum is present in. जो ear drum होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे मिडल ईयर.
नेक्स्ट इज fill in the blanks with correct word. अब fill in the blanks की बात करते हैं, ठीक है. डैश कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन टू आवर मसल्स. कौन कैरी करता है? दैट इज नोन एज मोटर नर्व. मोटर नर्व. रिफ्लेक्स एक्शंस आर डैक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वो कैसे एक्शन होते हैं? ऑटोमेटिक. कैसे होते हैं? ऑटोमेटिक. डैश, द डैश इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन. मैंने अभी जब आपको चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताया था कि लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन क्या होता है? आपका स्किन. डैश इज नोन एज ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम किसे कहा जाता है? मेडुला को. The nasal cavity is separated from the mouth by a bony structure समझा जाता है palate. That is known as palate. ठीक है. Now mention T for true and S for false. Cerebrum is located below the cerebellum. It's false. Reflex action is not an automatic response of the body. False. It is an automatic response. The sense organs connect us to our surrounding. हमारे surroundings में हमें connect करता है. We should read in proper light. True. We should not clean our sense organ. False. हमें properly जब हम बात करते हैं तो हमें clean करना चाहिए. The taste buds do not have never ending. It's false. Now match the following. We'll start with the match following. सबसे पहले आपका मेडुला. मेडुला क्या है? आपका स्टेम शेप्ड है. इट्स अ स्टेम शेप. मोटर नर्व का काम क्या होता है? कैरी मैसेज फ्रॉम द ब्रेन. टंग में क्या होते हैं? टेस्ट बड्स. नोज, स्मेल, आईज, सी एंड ईयर. ठीक है. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज नर्वस सिस्टम? राइट ऑल द पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम. अभी हम नर्वस सिस्टम पढ़ा था क्या होता है और जो उसके सारे पार्ट्स होते हैं आपको वो लिखना. ठीक है. नेक्स्ट इज ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ आई. आई का डायग्राम मैंने आपको दिखाया था. ठीक है. तो ये ना मैं आपको अभी भी दिखा देती हूँ. आपको आई का डायग्राम बनाना है. दिस वन. ठीक है. एंड देन यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द पार्ट्स. रेटिना, प्यूपल, इरिस. ठीक है. आपको ये सब क्या करना है? एक्सप्लेन करना. हाउ आर सेंसरी नर्व्स डिफरेंट फ्रॉम मोटर नर्व? आपको डिफरेंस लिखना है सेंसरी नर्व के बीच में और मोटर नर्व्स के बीच. एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन विद एग्जांपल. रिफ्लेक्स एक्शन मैंने आपको पढ़ाया था, आपको एग्जांपल भी देना है. एंड हाउ डू वी नो दैट relish food when we suffer from food? ठीक है. विद द हेल्प ऑफ नोट. हमारी नोट्स हो जाती बंद हो जाती. ठीक है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड. होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. थैंक